Okay, so once again, very good morning to all. So, welcome back to this lecture series on quantitative analysis. Okay, as you know that in last lecture we discussed how to formulate a linear programming problem. Right, depending on the given situation, we learned how to define a problem in terms of mathematical equations. Right. So we discuss several examples and we formulate problems like this either to maximize or minimize the problem. ये एग्जांपल्स हमने लास्ट लेक्चर्स में देखे थे राइट। जो हमें सिचुएशन दी गई है उसका यूज करके हमें प्रॉब्लम को मैथमेटिकल मॉडल के टर्म्स में कैसे फॉर्मुलेट करना है, दिस वी हैव लर्न। नाउ लेट अस मूव फर्दर। These are the common pitfalls and let us see how to avoid them. Mainly while formulating this LPP, the very first thing is incorrect problem definition. If you do not understand the problem properly, right, then the problem statement will be wrong one, and definitely that will give you to the non-realistic solution or infeasible solution, right? So first of all, we have to ensure that a clear and accurate अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम बिफोर फॉर्मुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जो आपको प्रॉब्लम दी गई है, आपको सिचुएशन दी गई है, उसको आपको ठीक से समझना है, राइट। उसका मीनिंग क्या है वो समझना है, उसके हिसाब से आपको प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है। अगर आपने किसी स्टेटमेंट का गलत मतलब निकाल दिया या फिर कुछ अलग समझ लिया, देन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो गलत फॉर्म होगा और डेफिनेटली जो हमें आंसर चाहिए, ऑप्टिमम सॉल्यूशन चाहिए, वो हमें नहीं मिलेगा, राइट। देन नेक्स्ट वन इज नॉन लीनियरिटी, राइट। The title of this section is itself linear programming problem. That means all the equations, all the inequalities, all the expressions occurring in this particular section will be of linear form. हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो भी हमारा इक्वेशंस या एक्सप्रेशंस आएंगे वो सारे कैसे होंगे, लीनियर होंगे। दैट मीन्स पावर ऑफ ईच टर्म विल बी वन ओनली, right? So this is about the non-linearity. So we have to verify that the objective function, constraints, all these expressions must be in terms of linear expressions only. And we have to verify that there are no unrealistic constraints. Ensure that the constraints are realistic and reflect actual limitations. Okay? आपको जो भी कंस्ट्रेंट्स मिल रहे हैं वो देखना है वो कंस्ट्रेंट रियलिस्टिक है कि नहीं है, राइट। So these are the most common pitfalls while formulating a linear programming problem. Okay, now let us discuss about the general statement of LPP. Question आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। Write down the general statement of linear programming problem. तो आपको दो केसेस लिखने हैं। यहाँ पे हमने पहले मैक्सिमाइजेशन की बात की है। In next slide we will discuss about the minimization. See, दोनों में काफी सिमिलरिटीज है। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस अप टू an xn। हमने इस टाइप के इक्वेशन देखे थे, या तो मैक्सिमाइज करना है या तो मिनिमाइज करना है। और जो हमारे कंस्ट्रेंट्स थे वो भी हमारे लीनियर इनइक्वालिटीज थे। सो c11x1 प्लस c12x2 प्लस c13x3 प्लस अप टू c1n xn लेस देन और इक्वल टू b1, c21x1 plus c22x2 plus c23x3 plus up to c2n xn, and lastly we are getting that cm1x1 plus cm2x2 plus up to cmn xm less than or equal to bn, right? These are our constraint, and we discussed that if you are dealing with the maximization problem then most of the constraints are of the form less than or equal to। आप देख सकते हैं मिनिमाइजेशन में भी सेम ही इक्वेशंस है, सेम ही एक्सप्रेशंस है, बट डिफरेंस इज देयर। यहाँ पे हमें मोस्ट प्रोबेबली ग्रेटर देन और इक्वल टू वाले कंस्टेंट ही मिलेंगे, राइट। दिस a1, c11, c12, likewise cij, b1, b2 up to bm, these are constants, and xj are known as the decision variables that we already discussed in last lecture, that x1, x2, x3, these are the decision variables. The constant ai are called profit constant, right? This a1, a2, a3 up to, and these are said to be the profit constant. Cij are said to be the technological constant, and this b1, b2 up to bn that are occurring on the right hand side of the expression of constraint, they are said to be the resource values. Okay, तो आपके पास LPP का जो जनरल स्टेटमेंट है वो
कुछ इस प्रकार से, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू a1x1 प्लस a2x2 प्लस अप टू an subject to the constraint c11x1 plus c12x2 plus up to c1nxn, and lastly cm1x1 plus cm2x2 plus up to cmnxn less than or equal to bm, and of course non-negativity conditions are there. On the other hand, if you are discussing about the minimization problem, then only greater than or equal to signs are there, otherwise rest of the things are same. Okay, so this is the general statement of linear programming problem. Now let us put some notes that are very much important. Generally, say the word generally. Generally, the constraint in maximization problems are of less than or equal to type, and for minimization problem, they are of the form greater than or equal to type. But a given problem may contain mix of constraint involving less than or equal to, greater than or equal to, and or equal to sign. राइट, सो ये नोट में क्या बता रही है, मोस्टली जो आपका मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम होगा उसमें कंस्टेंट कौन से टाइप के आएंगे, लेस देन और इक्वल टू टाइप के, और मिनिमाइजेशन का होगा उसमें क्या आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप के आएंगे, बट इट इज नॉट ऑलवेज द केस. कुछ प्रॉब्लम्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें कंस्टेंट लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इवन इक्वल टू, ये तीनों के मिक्सचर में भी आ सकते हैं. ओके, एंड यूजुअली द डिसीजन वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव. हम जो लास्ट में नॉन नेगेटिविटी कंडीशन लिखते हैं x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट, बट देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी मिलेंगे जिसमें जो हमारे डिसीजन वेरिएबल्स है वो नेगेटिव भी आ सकते हैं. दे आर नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, राइट. हम लिखते हैं मोस्ट प्रोबेबली वो पॉजिटिव होंगे, पर सभी केसेस में वो पॉजिटिव हो ऐसा जरूरी भी नहीं है. डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम, यू हैव टू डिसाइड whether they are always positive, they are always non-negative or not. ठीक है, so this was about the basics of linear programming problem, and now we will see how to solve this LPP using graphical method. अभी हम graphical method से ये LPP कैसे solve करनी है वो हम देखेंगे. ठीक है, अभी मेथड के नाम के ऊपर से आपको पता चल जाएगा. The name is graphical method. That means we are going to use graphs to find out the optimum solution for given particular LPP. ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड का यूज करके हम देखते हैं कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. जो एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है लास्ट लेक्चर में, राइट, जिसका हमने मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन किया था, वही एग्जांपल हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, ये एग्जांपल हमने फर्स्ट डिस्कस किया था कि एक फर्म है जो दो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, ए और बी, राइट. एक यूनिट प्रोडक्ट ए मुझे प्रिपेयर करना है तो मुझे 2 किलोग्राम रॉ मटेरियल चाहिए और 4 लेबर आवर्स चाहिए. सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट बी का एक यूनिट डेवलप कर रहा हूँ तो मुझे 3 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए और 3 लेबर आवर्स चाहिए, राइट. ऑल्सो मैक्सिमम मेरे पास 60 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल है और मैक्सिमम मेरे पास 96 लेबर आवर अवेलेबल है. प्रोडक्ट ए की एक यूनिट सेल करने पे मुझे 40 रुपीज प्रॉफिट मिल रहा है और प्रोडक्ट बी की एक यूनिट सेल करने पे मुझे 35 रुपीज प्रॉफिट मिल रहा है, राइट. तो ये सारी सिचुएशन को समझ के हमने इसका जो प्रॉब्लम है वो मैथमेटिकल टर्म्स में फॉर्मुलेट किया था. लेट्स सी दैट. हियर इज दैट एग्जांपल, राइट, जो हमने लास्ट लेक्चर में इसको मैथमेटिकल टर्म्स में फॉर्मुलेट किया था. एंड द फाइनल प्रॉब्लम वाज ऑफ दिस टाइप, दिस वन. Maximize 40x1 plus 35x2 subject to this constraint. Okay, subject to this constraint. So let us see the solution, how to solve using graphical method, right. So हमारा प्रॉब्लम क्या था, the mathematical formulation of given problem is as follows. Now see, पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन किया था, अभी यहाँ पे हमें उसका सॉल्यूशन भी करना है, राइट. सो लेट मी अपडेट दिस क्वेश्चन. ओके, राइट. सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, ये प्रॉब्लम का सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन किया था, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ठीक है,
तो एग्जाम में आपको ये भी पूछा जा सकता है, जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है स्क्रीन पे इसी टाइप से। तो इसमें आपको पहले क्या करना है, पहले आपको प्रॉब्लम को मैथमेटिकल टर्म्स में फॉर्मुलेट करना है, देन यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ओके फाइन। सो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑलरेडी हमने कर दिया है। व्हाट वाज द स्टेटमेंट? मैक्सिमाइज 40x1 plus 35x2, and what are the constraints? Subject to, the first constraint was 2x1 plus 3x2 less than or equal to 60. Next constraint was 4x1 plus 3x2 is less than or equal to 96, and lastly non-negative conditions, right? So this was the mathematical formulation of this particular problem. ठीक है, ओके अभी मुझे ये प्रॉब्लम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि ग्राफ का यूज करके मुझे कुछ आइडेंटिफाई करना होगा। सो बिफोर मूविंग टू द सॉल्यूशन, let me recall you that suppose I want to draw a straight line in a particular graph or in a particular plane। मुझे एक प्लेन दिया गया हुआ है, ठीक है, उसमें मुझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो हाउ कैन आई जनरेट अ स्ट्रेट लाइन इनटू गिवन प्लेन? मुझे क्या करना होगा, या तो मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी बेसिक टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन इन द गिवन प्लेन? सो ऑब्वियसली अगर मेरे पास प्लेन में दो अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हुए हैं, ठीक है, इफ आई एम हैविंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन अ गिवन प्लेन, और ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ठीक है, तो whenever you want to draw a straight line in a plane, you required minimum two distinct points। आपको अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए आपको मिनिमम टू डिफरेंट पॉइंट्स चाहिए। दो पॉइंट्स मिल गए, उन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हम कुछ स्ट्रेट लाइंस पहले यहाँ पे ड्रॉ करने की ट्राई करेंगे। नाउ let me recall you the general form of equation of a straight line। It is of the form ax1 plus bx2 equal to c, or sometimes you can also write it as ax1 plus bx2 plus c equal to 0, both are correct। ठीक है, so this is the general equation of a straight line। अभी आप देखिए जो हमारा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है उसमें भी कुछ ऐसा ही है, 4x1 प्लस 35x2। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2x1 प्लस 3x2 लेस देन और इक्वल टू 60। ठीक है, ये जो क्वांटिटी है लेफ्ट हैंड साइड की वो आइदर 60 है या तो 60 से कम है। सिमिलरली फॉर दिस वन, ये जो क्वांटिटी है दैट इज आइदर 96 या तो 96 से कम है, राइट। सो पहले हम क्या करेंगे, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? यूजिंग दिस टू कंस्ट्रेंट वी विल ड्रॉ टू स्ट्रेट लाइंस। दो कंस्ट्रेंट्स है तो मुझे दो स्ट्रेट लाइन मिलेंगी, और स्ट्रेट लाइन के लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे इक्वल टू चाहिए। यहाँ पे मेरे पास क्या है, लेस देन और इक्वल टू। तो पहले मैं क्या करूंगा, ये जो हमारी इनइक्वालिटी है उसको मैं पहले इक्वालिटी के फॉर्म में लिखूंगा, उसके बाद मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा, फिर देखूंगा कि लेस देन और इक्वल टू करने पे मुझे क्या डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, ग्राफ में। So ultimately the very first step is to draw the straight lines of given constraint। आपको क्या करना है, जो भी constraints आपको दिए गए हैं उसकी आपको एक ग्राफ के ऊपर स्ट्रेट लाइन बनानी है। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, दो पॉइंट्स चाहिए वो लाइन के ऊपर। तो लेट अस सी हाउ टू प्रोसीड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी वी हैव 2x1 प्लस 3x2 इज लेस देन और इक्वल टू 60। ये पहला कंस्टेंट मुझे दिया गया हुआ है, राइट। सो फॉर दैट कंसीडर 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 60। पहले मैं क्या करूंगा, इक्वल टू 60 ले लूंगा, तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल जाए, बिकॉज इट इज ऑफ द फॉर्म ax1 प्लस bx2 इज इक्वल टू c काइंड ऑफ फॉर्म, राइट। तो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। लेस देन और इक्वल टू मींस क्या होगा, जो स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी इक्वल टू वाली, उसके नीचे का जो पोर्शन होगा वो लेस देन वाला पोर्शन सेटिस्फाई करेगा, राइट। ओके, ये इक्वेशन तो मुझे मिल गया स्ट्रेट लाइन का। अभी मुझे क्या करना है, ये स्ट्रेट लाइन मुझे ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है।
तो मुझे कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए, राइट। ये लाइन के 2 पॉइंट्स चाहिए, तो ये 2 पॉइंट मुझे ये इक्वेशन के ऊपर से फाइंड करने हैं। तो कैसे करना है, वेरी सिंपल ट्रिक। पहले हम क्या करेंगे, लेट x1 इक्वल टू 0, ये हम x1 इक्वल टू 0 ले लेंगे तो मुझे x2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो सिंप्लाइज दैट 2 इंटू 0 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 60। देयरफॉर ये तो 0 हो गई फर्स्ट टर्म, what will be x2 is equal to 60 divided by 3, that is equal to 20। तो क्या हुआ, if I am taking x1 equal to 0 then I am getting x2 is equal to 20। it simply indicates that अगर आप x1 की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो x2 की वैल्यू क्या मिलेगी, 20 मिलेगी। it means that therefore x1 equal to 0, x2 is equal to 20 is a point on the line 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 60। ठीक है, देखिए क्या किया, लाइन में मैंने इजीएस्ट तरीका यही है, आप x1 की वैल्यू 0 ले लो तो आपको x2 की वैल्यू कुछ मिल जाएगी, राइट। तो क्या हुआ, x1 इक्वल टू 0 लिया तो x2 की वैल्यू मुझे क्या मिली, 20। दैट मीन्स लाइन के ऊपर मुझे एक पॉइंट मिल गया 0 20। ठीक है, एक पॉइंट मिल गया। अभी मुझे दूसरा पॉइंट फाइंड करना है। सेम प्रोसीजर में अप्लाई करूंगा, पहले मैंने x1 इक्वल टू 0 कंसीडर किया था, अभी मैं क्या करूंगा, नाउ लेट x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेम प्रोसीजर, x1 इक्वल टू 0 लिया तो मुझे x2 की कुछ वैल्यू मिली, अभी मैं x2 इक्वल टू 0 ले रहा हूं। सो इफ x2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट 2x1 plus 3 into 0 is equal to 60। now simplify this, you will get x1 is equal to 60 divided by 2 and that is equal to 30। तो क्या हुआ, if I am taking x2 is equal to 0, I am getting x1 equal to 30। this simply means that x1 इक्वल टू 30, x1 की वैल्यू हम पहले लिखेंगे, x2 की वैल्यू हम बाद में लिखेंगे। 30 इज ए पॉइंट ऑन द लाइन 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 60। तो देखिए अगर मुझे ग्राफ के ऊपर 2x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 60 लाइन ड्रॉ करनी है तो मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए, तो दोनों पॉइंट्स मुझे मिल गए, एक ये वाला एक ये वाला। अभी ग्राफ के ऊपर मैं ये दोनों पॉइंट्स प्लॉट करके दोनों को ज्वाइन कर दूंगा, देन आई विल गेट दिस स्ट्रेट लाइन 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 60। ठीक है, ये तो हमारा पहले कंस्ट्रेंट की बात हुई, इसके लिए मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए। अभी मेरे पास दूसरा कंस्ट्रेंट भी है, राइट। सो नाउ लेट अस डिस्कस फॉर दिस second constraint। so for that, what is the next equation, this 4x1 plus 3x2 less than or equal to 19। so we have 4x1 plus 3x2 is less than or equal to 96। ठीक है, so for that consider 4x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 96। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के लिए मुझे इक्वल टू साइन चाहिए, फिर से ये लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पहले अगेन सेम प्रोसीजर, लेट x1 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट आई विल गेट, 4 into 0 plus 3x2 is equal to 96। now let us simplify this, therefore 90 x2 is equal to 96 divided by 3, right। 96 divided by 3 and you know that there is 32। it simply indicates that अगर आप x1 equal to 0 ले रहे हैं तो मुझे x2 equal to क्या मिल रहा है, 32। therefore we can get that 0 32 is a point on the line 4x1 plus 3x2 इक्वल टू 96। एक पॉइंट मुझे मिल गया, कैसे मिला, आई हैव टेकन x1 इक्वल टू 0। दूसरा पॉइंट फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, नाउ लेट x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x2 इक्वल टू 0 लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा,
4x1 plus 3 into 0, that is equal to 96. And simplifying this, we will get, x1 is equal to 96 divided by 4, 96 divided by 4, and this will give you 24. ठीक है. What does this mean? This means that अगर आप x2 equal to 0 ले रहे हैं तो मुझे x1 की वैल्यू क्या मिल रही है? 24 मिल रही है. So therefore 24 0 is a point on the line 4x1 plus 3x2 is equal to 96. ठीक है. देखो मेरे पास दो ही कंस्ट्रेंट है, हमारे पास दो ही कंस्ट्रेंट है. तीसरा नॉन नेगेटिविटी कंडीशन है. x1 इक्वल टू 0 लेंगे तो आपको y एक्सिस मिलेगी, x2 इक्वल टू 0 लेंगे तो आपको x एक्सिस मिलेगी. ठीक है. दो कंस्ट्रेंट है, दोनों के लिए मुझे इक्वेशंस पॉइंट्स मिल गए. ठीक है. अभी ये दोनों पॉइंट्स का यूज करके मैं ये पहली लाइन ड्रॉ करूंगा, ये दोनों पॉइंट्स का यूज करके मैं दूसरी लाइन ड्रॉ करूंगा. नाउ लेट अस मूव टू ड्रॉइंग द ग्राफ ड्रॉ करते हैं अभी. चलिए लेट अस सी. ग्राफ के लिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं y एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं, देन आई एम ड्रॉइंग द x एक्सिस. दिस इज माय x एक्सिस. ठीक है. दिस इज x एंड दिस इज y एक्सिस. नाउ लुक एट द पॉइंट्स. जो पहली लाइन है उसमें x की वैल्यू कितनी मिल रही है? पहले पॉइंट में 0 मिल रही है, दूसरे पॉइंट में 30 मिल रही है. दैट मीन्स मुझे ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स ऐसे प्लॉट करने हैं कि मुझे 30 तो मिनिमम मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे 30 के ऊपर पॉइंट करना है. ऑन द अदर हैंड y के ऊपर यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 20. मुझे ये लाइन भी ड्रॉ करनी है, तो इसमें x की वैल्यू कितनी है? 0 और 24, और y की वैल्यू कितनी है? 32 और 0. तो आप दोनों चारों पॉइंट्स को देखिए, x की वैल्यू क्या है? 0, 30, 0, 24. तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 30. तो ग्राफ के ऊपर जो मैं यहाँ पे x एक्सिस पे पॉइंट लिखूंगा 1 2 3 4 या फिर 2 4 6 8 जो भी हो, तो एटलीस्ट 30 तक तो मुझे जाना ही है. ठीक है. सिमिलरली y के लिए क्या है? 20, 0, 32, 0. तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 32 है. तो एटलीस्ट मुझे 32 तक तो जाना पड़ेगा. ठीक है. सो क्या करूंगा मैं? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 यूनिट में ले लेता हूं. ठीक है. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 यूनिट में ले लेता हूं. चलिए देखते हैं कैसे करना है. सिर्फ 1 2 3. Say this is 4 8 12 16 20 24 28 32 एंड 36. मुझे आगे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x के ऊपर मेरी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 30 है. ठीक है. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दी y एक्सिस. y के लिए मुझे मैक्सिमम 32 तक जाना है. ठीक है. y के लिए मुझे 32 तक जाना है. सो लेट अस सी. इसमें अगर 4 8 12 16 20 24 28 एंड 32 यहाँ पे आ रहा है. एंड दिस इज माय y एक्सिस. ठीक है. अभी मैं क्या करूंगा? पॉइंट्स को प्लॉट करना है मुझे. पहले मैं फर्स्ट लाइन ड्रॉ करूंगा. ठीक है. ये जो मेरी फर्स्ट लाइन है ये मैं ड्रॉ करूंगा. 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 60. तो उसके लिए मेरा पहला पॉइंट कौन सा है? x1 इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 20. यहाँ पे आप x1 x2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि x एक्सिस की जगह पे मैं यहाँ पे x1 लिख रहा हूँ. दिस इज माई x2, क्योंकि ये मैं x2 की वैल्यू है. ठीक है. सो x1 इक्वल टू 0 और x2 इज इक्वल टू 20. तो x1 इक्वल टू 0 यहाँ पे होगा, x2 इज इक्वल टू 20 यहाँ पे. दैट मीन्स दिस पॉइंट, ये हमारी लाइन का फर्स्ट पॉइंट हो गया. x1 इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 20. दूसरा पॉइंट कौन सा है?
this one. x1 is equal to 30, x2 equal to 0. So let us see, x1 equal to 30, this is 28, this is 32, तो इन दोनों के सेंटर में कहीं पे होगा 30, and this one is 30. ठीक है, x1 इक्वल टू 30 एंड x2 इज इक्वल टू 0. तो मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए. ठीक है, मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए. अभी मुझे क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बनानी है. ठीक है, सो लेट अस सी कैसे बनानी है स्ट्रेट लाइन. सो दिस इज माय फर्स्ट लाइन. दिस इज माय फर्स्ट लाइन. और ये कौन सी लाइन है, 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 60. सो मैं कहीं पे लिख दूंगा, दिस वन इज 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 60. ये लाइन कौन सी है, 2x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 60. पर हमारा कंस्ट्रेंट क्या था, लेस देन और इक्वल टू 60. लेस देन की बात करेंगे तो ये लाइन के नीचे का पोर्शन. ठीक है, सो ये पूरा जो रीजन है ट्रायंगल वाला, राइट एंगल ट्रायंगल वाला, दैट इज द एरिया शोइंग द कंस्ट्रेंट 2x1 प्लस 3x2 इज लेस देन और इक्वल टू 60. ठीक है, पर अभी मैं हाईलाइट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास दूसरी भी लाइन ड्रॉ करनी है. नाउ टू ड्रॉ द सेकेंड लाइन, let us plot the points. The very first point is x1 equal to 0, x2 is equal to 32. So x1 equal to 0, ये वाला, and x2 is equal to 32. That means this point, this top point. एक पॉइंट ये हो गया. दूसरा पॉइंट कौन सा है, x1 equal to 24, x2 is equal to 0. That means x1 की वैल्यू 24 है, x2 की वैल्यू 0 है. That means this point. ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है. सो लेट मी ड्रॉ दिस लाइन. दिस इज माय सेकेंड लाइन. और ये कौन सी लाइन है मेरी, इट इज 4x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 96. दिस इज 4x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 96. नाउ सी, मुझे इस प्रॉब्लम का कैसा सॉल्यूशन फाइंड करना है, फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना है. सो लेट मी रिकॉल व्हाट इज अ फिजिबल सॉल्यूशन. Feasible solution of a linear programming problem is a solution that satisfies all the constraints, right? ऐसा solution जो सभी constraints satisfy करता हो. ठीक है, तो constraint मेरे पास क्या क्या है, एक तो 2x1 प्लस 3x2 लेस देन और इक्वल टू 60. दैट मीन्स ये लाइन के नीचे के जो पॉइंट्स है वो सभी कंस्ट्रेंट 1 सेटिस्फाई कर रहा है. दूसरा कौन सा पोर्शन है, 4x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 96. दैट मीन्स ये लाइन के नीचे का जो पोर्शन है वो सभी दूसरा कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं. पर मुझे कैसा कंस्ट्रेंट चाहिए, कैसा सॉल्यूशन चाहिए, जो दोनों कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करता हो. ठीक है, तो इस ग्राफ में मुझे ऐसा रीजन फाइंड करना है, इस ग्राफ में मुझे ऐसा रीजन फाइंड करना है जो मेरा दोनों लाइन के नीचे का पोर्शन हो. अगर आप इस रीजन की पर्टिकुलर बात करेंगे फॉर एग्जांपल, तो ये फर्स्ट लाइन के तो नीचे है लेकिन दूसरी लाइन के ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये मेरा फिजिबल रीजन में नहीं आएगा. सिमिलरली ये पोर्शन भी, ये फर्स्ट लाइन के ऊपर की तरफ है, दूसरी लाइन के नीचे की तरफ है, तो ये भी मेरा फिजिबल रीजन नहीं आएगा. ऊपर का भी नहीं आएगा क्योंकि दोनों के ऊपर की तरफ है. लेस देन और इक्वल टू है, दैट मीन्स दोनों लाइन के नीचे की तरफ का जो एरिया है दैट इज माय फिजिबल रीजन. सो ये मेरा जो एरिया है वो मेरा फिजिबल रीजन हो जाएगा. ठीक है, उसको हम हाईलाइट कर देंगे. दिस पर्टिकुलर रीजन इज आवर फिजिबल रीजन. फिजिबल रीजन को आपको हाईलाइट कर देना है. फिजिबल रीजन का मतलब क्या होगा कि ये जो रीजन है हमारा, उसमें से आप कोई भी पॉइंट लेंगे, दैट विल बी योर फिजिबल सॉल्यूशन. दिस इज अवर फिजिबल रीजन. इस रीजन का कोई भी पॉइंट लेंगे तो आपके दोनों कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करेगा. पर हमें तो क्या चाहिए, ऑप्टिमम सॉल्यूशन चाहिए. तो हम थियरी पोर्शन में नहीं जा रहे, दैट्स व्हाई we'll discuss directly the solution.
थियरी में ये बताया गया है कि आपका जो फिजिबल रीजन है उसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स है उसी पॉइंट्स के ऊपर आपको फिजिबल ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिलेगा। और हम क्रिटिकल पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये जो हमारा फिजिबल रीजन है उसके जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये भी कॉर्नर है, आप देखिए सिर्फ ये इस टाइप का कुछ रीजन है, ये फिर ये लाइन फिर ये लाइन फिर ये लाइन, ठीक है। तो एक क्रिटिकल पॉइंट मेरा ये हो गया, एक ये कॉर्नर पॉइंट हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ये चार मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ अलग से, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर फॉर माय क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। नाउ ये पॉइंट कौन सा है, दिस वन इज 0 0, वी नो दैट दिस इज 0 0। ये कौन सा पॉइंट है, x2 0 है, x1 0 है, x2 क्या है 20 है। ये पॉइंट कौन सा है, x1 24 है, x2 0 है। ये पॉइंट कौन सा है, दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे लाइन। तो ये 16 और 20 के बीच में आ रहा है, तो x1 की वैल्यू कैसी है, 18 आएगी। और सिमिलरली आप यहां से अब लाइन ड्रॉ करोगे तो दैट इज 8, ठीक है। तो ये पॉइंट कौन सा है, 18 8। नाउ सी, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दिस पॉइंट इज एन इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ दिस लाइन। दैट मीन्स ये पॉइंट लाइन 1 के ऊपर भी आ रहा है और ये पॉइंट लाइन 2 के ऊपर भी आ रहा है। आपका ये पॉइंट करेक्टली मेजर हुआ है कि नहीं, हाउ टू वेरीफाई, आप x1 इक्वल टू 18 रख दीजिए, x2 इक्वल टू 8 रख दीजिए, देन सिंप्लीफाई, आपको 60 मिलना चाहिए। सिमिलरली x1 इक्वल टू 18 रख दीजिए, x2 इज इक्वल टू 8 लिख दीजिए, सिंप्लीफाई, आपको 96 मिलना चाहिए, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दैट मीन्स ये पॉइंट दोनों लाइन के ऊपर है, तो ये दोनों लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमने ग्राफ में अगर ठीक से मेजरमेंट नहीं लिया तो हमारा पॉइंट थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, तो आपको एग्जैक्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं भी मिल सकता है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये जो पॉइंट मिला है उसको हम यहाँ पे रख देंगे इक्वेशन में, x1 इक्वल टू 18 लिख दिए, x2 इक्वल टू 8 लिख दिए, सिंप्लीफाई करो, आपको 60 मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप रखो 18 8, आपको 96 मिलना चाहिए। कई बार ऐसा हो सकता है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे पर ये नहीं करे, तो दैट इज नॉट अ वैलिड पॉइंट, राइट। दैट मीन्स आपका प्लॉट जो है पॉइंट वो कहीं पे ऊपर नीचे हो गया है। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो दोनों लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मेरे पास कितने पॉइंट आ गए, चार क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, राइट। अभी नेक्स्ट स्टेप में मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। सो नाउ लेट अस नोट डाउन द क्रिटिकल पॉइंट्स। नोट दैट द पॉइंट्स 0 0, देखिए क्रिटिकल कौन से थे, 0 0, 0 20, 0 0, 0 20, 18 8 and 24 0 are the critical points। अभी क्रिटिकल पॉइंट्स के पास मुझे ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिलेगा, दिस आई नो। अभी कैसे फाइंड करना है, सो फॉर दैट लेट अस प्रिपेयर अ टेबल। सो फर्स्ट कॉलम कंटेन्स क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। पहली कॉलम में मैं क्रिटिकल पॉइंट्स लिखूंगा और दूसरी कॉलम में वैल्यू ऑफ। नाउ सी, अब तक मैंने कहीं पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसका यूज नहीं किया है, राइट। व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दिस वन, 40x1 प्लस 35x2, इसको मुझे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो अभी मैं जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हैं उस पॉइंट्स का यूज करके मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा, दैट इज 40x1 प्लस 35x2, राइट। Now what are the critical points, 0 0, 0 20, 18 8 and 24 0। तो पहले मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा फॉर्मुलेशन है, ये जो मेरा एक्सप्रेशन है 40x1 प्लस 35x2, उसमें मैं x1 इक्वल टू 0 पुट करूंगा, x2 इक्वल टू 0 पुट करूंगा, तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, ऑब्वियसली 0, राइट। नेक्स्ट में मैं क्या करूंगा, x1 इक्वल टू 0 रख दूंगा। नेक्स्ट में मैं क्या करूंगा, x1 इक्वल टू 0 एंड x2 इज इक्वल टू कितना रखूंगा मैं, 20, बिकॉज मेरे पास पॉइंट कौन सा है, 0 20। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x1, दिस इज द वैल्यू ऑफ x2 एंड दिस विल गिव यू 700, राइट। नाउ नेक्स्ट में आई एम हैविंग x1 इज इक्वल टू 18,
ठीक है, x1 इज इक्वल टू 18 और x2 मेरे पास क्या है 8। सो मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू, I will put x1 is equal to 18. That means 40 into 18, right? I will do 40 into 18 plus क्या करूंगा मैं 35 into 8, ठीक है, 35 into 8. So this will give me the quantity 1000. And lastly 24 0, that means x1 is equal to 40, ठीक है, x1 is equal to, sorry, x1 is equal to 24 and x2 is equal to 0. So this will give me 960, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे हैं उसके ऊपर मुझे वैल्यूज फाइंड कर लेनी है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम इज टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, मैक्सिमाइज करनी है। तो आप ये टेबल में देख लीजिए कौन से पॉइंट के पास मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, दिस वन 1000 इज द मैक्सिमम वैल्यू। So this is my optimum solution. Optimum solution means therefore objective function has maximum value at the point 18 8. Therefore x1 is equal to 18 and x2 is equal to 8. Now what is x1 and x2? x1 is the number of unit, number of product। x1 हमने क्या लिया था, x1 is the unit of product A produces every week and x2 is the number of units of product B produced every week, ठीक है। सो आपको अगर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एवरी वीक आपको प्रोडक्ट ए के 18 यूनिट्स बनाने हैं और प्रोडक्ट बी के आपको 8 यूनिट्स बनाने हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम मिलेगा। देयरफॉर to maximize the profit, to maximize the profit, 18 units of product A and 8 units of product B are to be produced, and this is your final answer, ठीक है। Let us quickly recall the steps। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पहले तो प्रॉब्लम दिया गया उसको आपको मैथमेटिकल टर्म्स में फॉर्मुलेट करना है। उसके बाद जो हमारे कंस्ट्रेंट्स है इनइक्वालिटीज उसको पहले आपको इक्वालिटी के फॉर्म में लिख देना है। उससे क्या होगा कि हमें स्ट्रेट लाइंस के लिए पॉइंट मिल जाएंगे। दो दो पॉइंट फाइंड कर लेना है। पहले x1 इक्वल टू 0 रखिए, आपको एक पॉइंट मिलेगा। x2 इक्वल टू 0 रखिए, आपको दूसरा पॉइंट मिलेगा। ये पहले कंस्ट्रेंट के लिए किया, सेम प्रोसेस मैंने दूसरे कंस्ट्रेंट के लिए की। तो मुझे मेरे पास दो ही कंस्ट्रेंट है तो दोनों स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे दो दो पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। फिर हमें ग्राफ प्लॉट ड्रॉ करना है, उसके ऊपर मुझे पहले ये दो पॉइंट्स प्लॉट करने हैं फर्स्ट लाइन के। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके मुझे एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। सिमिलरली दूसरे के लिए मुझे दो पॉइंट्स मिलेंगे, उसको ज्वाइन करके मुझे स्ट्रेट लाइन बनानी है, ठीक है। फिर अगर ये हमारा मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है और सभी कंस्टेंट क्या है, लेस देन और इक्वल टू, तो दोनों लाइन के नीचे का एरिया जो कवर कर रहा है वो कॉमन रीजन मुझे आइडेंटिफाई करना है। सो दिस इज माय कॉमन रीजन satisfying all the constraint, that means lying below both the lines। तो ये मेरा क्या हो गया, फिजिबल रीजन हो गया, ठीक है। फिजिबल रीजन का कोई भी पॉइंट होगा वो आपका सॉल्यूशन होगा, फिजिबल सॉल्यूशन होगा, सभी कंस्टेंट भी सेटिस्फाई करेगा, पर वो हमारा ऑप्टिमम, दैट मींस इन दिस केस मैक्सिमम सॉल्यूशन नहीं होगा। मैक्सिमम सॉल्यूशन मुझे सिर्फ फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स के पास ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स मैंने आइडेंटिफाई कर लिए। फिर क्या करना है, इन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स लिख देने हैं। उसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स है इस पॉइंट्स के पास मुझे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करनी है। ये मेरा मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो मुझे देखना है कि कौन से पॉइंट के पास मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो ये पॉइंट के पास मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, दैट मींस दिस इज 18 8 इज माय दी
optimum solution, right? So what do we mean by 18 8? x1 इक्वल टू 18, x2 इज इक्वल टू 8. दैट मीन्स अगर मुझे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो मुझे एवरी वीक प्रोडक्ट ए की 8 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है और प्रोडक्ट बी की मुझे 8 यूनिट प्रोड्यूस करनी है. दैट विल मैक्सिमाइज माय प्रॉफिट. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड द मेथड हाउ टू सॉल्व एलपीपी यूजिंग ग्राफिकल मेथड. ये हमने मैक्सिमाइजेशन का एग्जांपल देखा. लेट अस सी वन मोर एग्जांपल ऑफ मिनिमाइजेशन. जो हमने पहले मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम फॉर्मुलेट किया था उसी को हम सॉल्व करेंगे. ठीक है.